Types of people you should never befriend no matter what. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Muskan, and in today's video I will be sharing my experience with you, basically a kind of life lesson with you maybe that will help you in understanding that why you should never be friends with these kind of people, like now I'm 23 and I'm still a kid, still learning and growing, but there are a few things that I think if there are girls who are watching, who are like girls of my age who are watching the video, or girls who are younger than me, who are in their 20s or 18 plus, who are in their 11th, 12th, 10th, whatever, you will always have this one set of friends in your school, like who will always motivate you to do the wrong things. Like no matter what you're doing, they will always cheer you up. Like even if like you are not attending your classes, even if you are not studying, and they'll always tell you that, oh, you're gonna make it anyways, you're so bright, what's the point of studying so much, we're also not studying. And they will always be this one set of friends, one group of friends who will who will do no good in their lives, no good to themselves and their lives, and they will never let you do like good with your life. Okay, so I'll give you an example. Fine, for example, I am not attending my classes. Okay, I don't feel like studying. I'm not attending my classes, and I'm just roaming around in the corridor because of whatsoever reasons. Okay, now these group of friends will tell you, okay, let's go out. Or even if you're like, okay, let me attend my class today, ये वाला important है, थोड़ा सा मन तो नहीं है but मैं कर लेती हूँ. These are the friends who will tell you, अरे यार तुम तो पहले से ही टॉपर हो, इतना क्या ज़रूरत है तुमको पढ़ने का, चलो मैम बुला रही है तुमको, चलो चिल करके आते हैं, एंजॉय करके आते हैं. एंड तुम्हारा इनर गट कहेगा कि आई शुड नॉट, दिस इज़ रॉन्ग, और मुझे बैठना चाहिए क्लास में. और अगर तुम अकेले होते, लाइक ऑन योर ओन होते, तुम्हारे फ्रेंड्स ना होते, तुम बिना मन के भी क्लास अटेंड कर रहे होते, बिना मन के भी अपना वो लंच बॉक्स खाते जो तुम्हें नहीं खाने का मन था, बिना मन के भी अपना वो होमवर्क उनका कॉल ना ले करके वो टाइम बचा के अपना काम करते. बट नाउ दीज आर द फ्रेंड्स, दे आर लाइक क्रैब्स इन अ बास्केट. ओके, लाइक ना ही वो खुद से बाहर आएंगे और ना ही दे लेट यू कम आउट ऑफ दैट बास्केट. Like it gives them a sense of satisfaction when they know that you are also not doing any good in your life. Okay, like you are also one of them. होता है ना, like when you know कि you've not studied and you ask the other person, तुमने पढ़ा है, they tell you नहीं यार हमने भी नहीं पढ़ा. You're like, चलो हमने नहीं पढ़ा. How humans function. You wanna know how humans function. हमें इससे दुख नहीं होता है कि हमने कुछ नहीं किया है, हमें दुख इससे होता है that the other person has done more than what I have done. ठीक है, तुम्हें इससे दुख नहीं होगा कि ओके आई वॉज सपोज टू डू दिस टास्क, आई हैव नॉट डन दिस टास्क, ओ शिट. नो, you will be more jealous, and you will be more sad about the achievements of the other person than your unfulfilled whatever. Okay, your incomplete task, assignments, whatsoever. Fine, so you will have these kind of people as your friends in school. You will also have, why is everything that I'm touching turning red? Okay, so you will always have these group of friends in your school. You will have these group of friends in your college who will always encourage you to do the bad things. They will always tell you ki if for example you get a text, okay, now they will tell you, अरे reply करना, okay, talk to him ना. And your inner gut will say that no, I'm supposed to study, I should not be replying to him or her, whatever, I have a test. No, now these are the friends who will call you and they'll tell you, hey, let's go and hang out ना. अरे छोड़ो, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा तो इतना तैयारी होगा कि तुम एग्जाम तो लिख ही लोगी अच्छे से, तुम तो वैसे भी टॉप करती हो हर बार. Now when you are not scoring 95 like as you expected, you are not scoring 95 out of 100, you are scoring 88 out of 100. Okay, though you were capable of scoring 95 out of 100, but you did not score 95 out of 100. Okay, now your friends will try to convince you, अरे 88 out of 100 is too much यार, we scored 70, see you're topper, you're so good at studies. So these are the friends who will never tell you what's right for you. At this point I'm 23, I have two friends, barely two friends. And these are the people who criticize me, like that constructive criticism, they criticize me the most. That Muskan, you are not eating healthy, you're not waking up on time, your sleep cycle is so fucked up, and you should be studying. Look, not that they are also, like for example, I'm a student, okay, or like most of my friends are working and they're in different fields. Not that they are studying the same thing that I am studying, not that they have the same goals as I have. Okay, but I make sure at this point of my life that no matter like who the person is, like the person I'm friends with, like who the person is or what his or her goal is, he or she should be adding something positive, something good in my life.
Okay, like I have a friend. I don't know if I should mention her. Nazar is real, but she always keeps telling me that Muskan, you're not eating properly, and you should be waking up. You should be waking up on time, and Muskan, like you have such a big goal. You should be studying well, else तुम्हें normal job करनी है. मेरी तरह तो तुम वो भी कर सकती हो. So you see, that is the kind of like friends you should be like, you should surround yourself with. They are the ones who tell me that Muskan, this is something I did and this is not something you should be doing, है ना, ये करने से ये होगा, ये मत करो. Maybe that is because I'm not friends with the people of my age, but I also don't believe that people mature with age. I think people mature with experiences. So please avoid these types of friends and listen to your gut. पता है कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे I'll tell you. For example कि you're sitting in a class, okay, and it is a very boring lecture. Your inner gut, like you yourself know, your soul, your heart knows that you should be attending this lecture. It is very important, ठीक है. The good side of you, your gut, your inner self will always tell you that, ठीक है. पर तुम्हारा मन जो इतना मचलता है वो तुमको बताएगा कि अरे यार चलो ना बाहर इंजॉय करते हैं, थोड़ा देर एक राउंड मार के आते हैं, वॉशरूम तक देख के आते हैं क्या हो रहा है. फर्जी कुछ नहीं तो फर्जी पानी पीने, पानी से आता है कुछ नहीं तो फालतू चलो पानी की बोतल भर के लाते हैं. सबकी बोतल भरने वाला वो एक बच्चा होता है, ठीक है. अब तुम्हारे ना मन का कुछ भी लाइफ में जब होता है, जैसे ये मैंने जो आपको बताया, तो अब एक साइड जो होगा ना, जो सच्चा वाला होगा, जो गट अपना आपको बता रहा होता है दैट ओके दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग. अब जो बुरी वाली चीज़ होती है ना, जो आपको भी पता होता है गलत है, वो वाला चीज़ किसी का वैलिडेशन ढूंढता है, ठीक है, कि अभी यार बंक तो मार सकता हूँ ना, तो इतना कंप्लीट ही हो गया, चल पानी पीने चले, हाँ ठीक है चले. कभी कभी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में बैठो जहाँ पे सब कोई पढ़ाई कर रहा है, 10 बच्चे बैठे हैं, सब कोई पढ़ाई कर रहा है, तब सबसे पूछते हुए पानी पढ़ने चलेगा, ये घूमने चलेगा, कैंटीन तक चलेगा, एवरीबडी सेज नो, यू विल ऑल्सो नॉट गो, यू सिट देयर एंड स्टडी. तो आपको जो बुरा वाला थॉट होता है ना दिमाग का, जो नहीं करना चाहिए बट आप किसी का वैलिडेशन, आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, जो एक्चुअली में आपको करना नहीं चाहिए, वो दूसरों का वैलिडेशन मांगते हैं, ठीक है. और वो जिससे वैलिडेशन मांगते हैं ना, वो ये नेगेटिव टाइप के फ्रेंड्स होते हैं. दीज आर द गर्ल्स एंड दीज आर द बॉयज. अरे गो गर्ल, पता है कि बिल्कुल ओबीज हो रखे हैं, गंदा खा खा के एकदम शरीर फैल चुका है और 50 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, बट दीज आर द फ्रेंड्स, दीज आर द पीपल हु विल टेल यू दैट इट्स ओके गर्ल, यू गो गर्ल, यू बिच एंड ऑल ऑफ दैट. These are the people like you should never be friends with them. ये जो इतनी टॉक्सिसिटी को प्रमोट करते हैं कि तो क्या हुआ 2 बजे तक रो रहे हैं, बहुत सैड है, गाने सुन रहे हैं, वो भी तुमको बता रही हैं कि मैं भी बहुत सैड हूँ यार लाइफ में, both of you are talking crap at 2 AM. They are not your real friends. See, I'll tell you, कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, कोई दिक्कत है, कोई इमोशनल बातें हैं, आपको शेयर करना है एंड यू आर शेयरिंग इट विद द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ योर्स, दैट इज अ होल डिफरेंट स्टोरी. Okay, but if that friend is not letting you know that crying every single day till 3 AM and not doing what's supposed to be done is right, they are not the right friends for you. तो ये जो घटिया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है ना स्कूल और कॉलेज में, और जहाँ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, वहाँ पर जो मिलता है, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो अगर, अवॉइड दिस टाइप ऑफ फ्रेंड्स. वैलिडेशन और टेम्प्रेरी पॉपुलैरिटी के लिए जो कर रहे हो ना, मत करो. लॉन्ग रन में यू विल रियलाइज दैट वो जो चंद मोमेंट्स की, कुछ महीने की, 1 साल की फालतू बकवास वैलिडेशन होती है, 10 people नो यू एंड द 4 गर्ल्स यू आर ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद, भाड़ में भाई. ना वो कुछ कर रहे होंगे अपने लाइफ में, ना तुम कुछ कर रहे होगे. बढ़िया 4 दिन की पॉपुलैरिटी के बाद बढ़िया डाउनफॉल होगा, उसके बाद खुद को उठाने में ना इट टेक्स लाइक द शिट आउट ऑफ यू. इसलिए don't be friends with these kind of people. Be friends with people who are benefiting you. Not that you should only be friends with people who are intelligent or people who are very rich or people who are successful, people who are like hardcore very good athletes, successful. No, it's not like that. People like these should be the people who add positive things to your life, or who like people who give you genuine good suggestions, like when you really need suggestions from them, or they are there with you when you need them. बकवास करने के लिए नहीं कि हाँ बंक मारने चल रहे हैं, चलेगा, हाँ ठीक है, दे द रियल फ्रेंड्स. नो, हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है. इन स्कूल यू विल हैव लाइक, तुम्हें पता होगा कि मुझे पढ़ना है और अपना स्पोर्ट्स जो है उसको प्रैक्टिस करना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, अच्छा खाना है, और एग्जाम्स आ रहे हैं उसके लिए इतना घंटा पढ़ना है. बट देन यू हैव दिस 1 or 2 टॉक्सिक फ्रेंड्स वुड आस्क यू कि ए चल घूमने चल रहा है क्या, तैयार तो हो ही गया है हमारा इतना, you'll be like अरे यार इनको कैसे मना कर सकते हैं. यू कैन से नो टू देम, बिकॉज इफ यू डोंट से नो टू देम, गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड अ ब्राइट फ्यूचर विल से नो टू यू. दैट इज ऑल आई हैड टू से. दैट if you are like at this age 20s or 18 plus, just avoid these kind of people.
ट्वेल्थ 10th 11th में हो और कॉलेज में हो, अवॉइड करो यार. यू नो लेटर इन लाइफ you'll regret because these are the people who will do no good to their selves and their life. Maybe they do but you won't. और तुम्हें लग रहा है दैट यू नो इफ़ यू लीव देम, ये जो एवरीबडी नोज यू एंड दी सेंस ऑफ जॉय यू डू, एक तो पहली बात तो यू नीड टू स्टॉप ब्लेमिंग देम बिकॉज यू आर द वन हु वांट्स टू डू ऑल दैट. तुम अगर कुछ नहीं करना चाहोगे, नोबडी कैन मेक यू डू एनीथिंग. ठीक है, इस टाइप के फ्रेंड्स को अवॉइड करो जो तुम्हारे नेगेटिव और भद्दी थॉट्स को और जो नहीं करना चाहिए उनको वैलिडेट करते हैं. यू नो दीज आर द अगलीस्ट फ्रेंड्स यू कैन हैव. लेटर इन लाइफ यूल रियलाइज एंड यूल रिग्रेट, क्योंकि लाइफ टाइम तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे नहीं. रहेंगे तो भाई भगवान भरोसे है तुम्हारी लाइफ. ऐसे दोस्त हैं तुम्हारे स्कूल या कॉलेज में तो प्लीज़ रन फ्रॉम देम. और जो नेगेटिविटी प्रमोट करते हैं फालतू की, सो व्हाट इफ यू वेकिंग अप एट 10 AM, दैट्स टोटली फाइन. सो व्हाट इफ यू गेन वेट, सो व्हाट तुम स्किन केयर नहीं करती, पढ़ाई नहीं कर रही हो तो इट्स ओके, चिल मार यार, सो जा. यू नो सो जाओ भाई, सो जाते हैं. ऐसे दोस्त प्लीज़ अवॉइड करो. लाइक बी फ्रेंड्स विद पीपल जिनसे बात करके रिचार्ज फील होता हो लाइफ में, जो तुम्हें अच्छा चीज़ें सिखाते हो. वो अपनी लाइफ में खुद जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, तुम्हें हमेशा अच्छी राय देते हो. और तुम्हें ना पता होता है डीप डाउन, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं हो, तुम्हें पता होता है. तुम्हें ना तुम्हारे मन में कुछ अगर होगा कि तुम्हें ये पानी पीना चाहिए कि नहीं, तुम्हें ये सामान इसका पड़ा है सोने का चेन, इसको उठाना चाहिए कि नहीं, तुम्हें पता होगा. ठीक है कि तुम्हें नहीं उठाना चाहिए, बट तुमको फिर वैलिडेशन चाहिए भाई उठा सकते हैं ना. तो क्या हुआ भाई, इतना चलता है गुड लाइफ के लिए. यहाँ पड़ा है तो भगवान चाहते ही होंगे कि हम इसे उठा लें. हमारे लिए तो है. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. ये बुलशिट जो है ना, ये दो टाइप के थॉट्स होते हैं दिमाग में, एंड यू ऑलवेज नो व्हाट्स राइट फॉर यू. So you can always choose. Avoid these type of friends if you have them around you. अकेले रह जाओगे वाले डर से हो सकता है तुम उनसे कट ऑफ एकदम से ना कर पाओ, बट अंदर से थोड़ा थोड़ा ट्राई टू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड एंड कट ऑफ ऐसे लोग, क्योंकि आगे इन लाइफ यू रियलाइज की जर्नी पूरी अकेले की ही है. वंस यू आर लाइक 22, 23, 24 तुम्हें रियलाइज़ होता है दैट यू नो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जर्नी में, मास्टर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसकी जर्नी में यू आर टोटली अलोन. ये स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम तक साथ साथ रहते हैं, उसके बाद जॉली लाइफ खत्म हो जाती है. तो ऐसे दोस्तों के साथ हो ना तो प्लीज़ हट जाओ. स्कूल कॉलेज में हो, जहाँ कहीं भी हो, UG PG जो भी कर रहे हो, you think that you will be alone but you will not be alone. You know you will attract people who are like you. तुम अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करते हो. तुम अगर नशेड़ी हो, नशेबाज हो, तो हर टाइप के लोग ना अपने टाइप के लोग ढूंढ लेते हैं. पढ़ लिखने वाले वर्कोहॉलिक लोग अपने टाइप के लोग ढूंढ लेते हैं, हेल्दी लोग अपने टाइप के लोग ढूंढ लेते हैं, जिम फ्रीक्स अपने टाइप के मोटिवेटेड जिम फ्रीक्स ढूंढ लेते हैं, लूजर्स अपने टाइप के लूजर्स ढूंढ लेते हैं, और जिनको जो करना होता है वो अपने टाइप के लोग ढूंढ लेते हैं. दिल टूटे लोगों को ढूंढ लेते हैं. दर्द को पहचान सकता है. तो लेफ्ट अलोन कुछ नहीं होगे, लेकिन कहीं से कहते हैं ना, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है. तो यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ वेयर यू आर अभी. तो अच्छे लोग अच्छी चीज़ें कैसे मिलेंगी, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना थोड़ा सा. तो यू विल हैव टू रिस्क इट. बट अकेले नहीं रहते हैं. ये झूठी फ्रेंडशिप्स में जहाँ तुम एडजस्ट कर रहे हो, लाइक यू नो यू आर हैंगिंग आउट विद पीपल, तुम्हें दिल से मन नहीं कर रहा है इनके साथ हैंग आउट करने का, लेकिन किए जा रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, इनसे बात कर रहे हो, इनका कॉल उठा रहे हो, इनका फ़ोन रखते हो तो अजीब सी एनजाइटी और ड्रेन फील होता है, बट किए जा रहे हो. क्या अकेले रह जाओगे? एटलीस्ट ही हैं तो 4 लोग तुमको पूछ तो रहे हैं. अपने कमरे में अकेले रह जाओगे? नहीं रहोगे अकेले. Like try to get rid of them first and then you see like you know good opportunities, good people, like good things coming to you. So be away from these kind of people and learn to say no and learn to risk it all. अब कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है. Thank you guys. Bye bye.